Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we have started this new chapter. In the last last video, we have completed the second chapter in political science, the role of government in the health issues के लिए. What is the role of the government? This we have understood, where we understood that what are the public health system and what are the private health systems and how it is being carried on. Okay. After finishing this chapter, two chapters are already completed in political science. I thought we need to complete the second chapter in history. दोनों then we will be doing geography also. इसी तरह से करके we will be proceeding so that in all the books 1, 2 chapters are completed. So this chapter that we have started in the last video that you have seen, it is talking about new kings and kingdoms. This new kings, how did they come up? From where did they come up? एक हमने example देखा in the last class. Whose example we have discussed? We have discussed about the example of Rashtrakuta ruler दांती दुर्गा. ठीक है. पहले ये चालुक्यास के साथ काम कर रहे थे. He was working with the Chalukyas and as a महासमंता, as a samanta. Then चालुक्यास के साथ इनका कुछ मनमुटाव हो गया. He had some fights with them and he declared himself as the ruler. इन्होंने कहा अब हम उनकी बात नहीं मानेंगे, अब हम रूलर हैं और हम अब राज्य करेंगे. I am the ruler and I would be ruling. This is what he decided. इसके लिए उन्होंने क्या किया? He organized a ritual. What was that ritual called as? Yes. You remember it, children? Hiranyagarbha. Garbha is the womb of the mother. Garbha, where the child is kept for 9 months. God blesses the lady for being a mother. So that is Garbha. And he said कि I have come from the golden womb. Hiranyagarbha means golden womb. I am born as a ruler now. मैं जन्म लेता हूं. Okay? And though he was not a Kshatriya, but then he claimed himself to be as a Kshatriya. पहले क्या होता था ना? There was only the Kshatriyas could be the ruler. So after this ritual, he claimed to be a Kshatriya. इन्होंने कहा अब मैं जो हूं मैं एक क्षत्रिय हूं and I will not listen to anyone. कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको उसके साथ. ये तो एक कहानी है. Sometimes what happened, some people who were from very good families, some people from enterprising families, some people from enterprising means those who are very well-to-do families. Enterprising families formed kingdoms. इन्होंने भी अपने अपने राजपाट बना लिए. Kingdoms by using their military skills. By using their military skills. अपने आप को बहुत ही ऊंचा इन्होंने दिखाया. They showed off their power. जो लोग इनके पावर को नहीं मान रहे थे, the people who were not ready to accept their power, उनको इन्होंने फोर्स किया. They just
imposed on them कि no, we are the rulers. इसमें क्या थे? There were two rulers, कदम्ब मयूर शर्मन, कदम्ब नाम याद करना पड़ेगा बेटा आपको, मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र, गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र. Got it? ये they originally पता है they were Brahmins who gave up their traditional profession and took up arms. Okay? Where Brahmins. ब्राह्मण का काम क्या होता है पहले के जमाने में? Brahmins work was just to do the पूजा पाठ and worship. एंड किंग के यहाँ पे जाना है, पूजा पाठ करना है, दान दक्षिणा में जो मिल जाएगा दे विल बी हैविंग दैट. इसी तरीके से अपनी जिंदगी चलाते थे. सो द ब्राह्मण्स हु वर देयर, अब ये ट्रेडिशनल जो इनका था दे गेव अप दोस ट्रेडिशनल एंड टुक टू आर्म्स. वे ब्राह्मण्स एंड हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक अप आर्म्स. इन्होंने हथियार उठा लिए. ये दे सेट की नहीं, अब हम किसी रूलर को अपना रूलर नहीं मानेंगे. नाउ वी आर द रूलर्स एंड दे एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स. ब्राह्मण्स होके जिनका काम खाली पूजा पाठ करना होता है, दे एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान. दे एस्टैब्लिश्ड their kingdom. कहां पे स्टैब्लिश किया? कदम्ब मयूर शर्मन, इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया कर्नाटका, यही लिख देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड गुर्जरा प्रतिहारा वेयर देयर इन राजस्थान. राजस्थान बाय प्रोफेशन पंडित, ठीक है, बाय बर्थ पंडित, बट देन बाय कर्म से रूलर हो गए. ऐसे ये पंडित थे. Got it? So this was there and this is how they have established themselves on a very large scale. अपने तरीके से, and they established very powerful empire. मतलब the empire that they have established was known for to the forthcoming generations. आने वाले लोगों को इनके बारे में पता था, आने वाले generations को. So that was their power and that is how they have established themselves. Okay. फिर इन्होंने क्या किया? They have also done established administration in the kingdoms. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रूलर्स अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते थे, ठीक है, किंग्स है, किंगडम है, हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेशन कैरी ऑन? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स उन रूलर उन एम्पायर्स का काम कैसे चलता था? What, how was the work being carried on? ठीक है, that is what we will be understanding. बहुत सारे जो किंगडम्स थे ना, many of these kings they adopted high titles. Many kings adopted high titles like बड़ा बड़ा अपना नाम रखते थे ताकि नाम ही सुन के लोग डर जाएंगे. Big names they used to keep, high sounding titles जैसे राजाओं के राजा, महाराजाओं के राजा, like महाराजाधिराजा, महाराजाधिराजा. Okay. Great king, overlord of kings,
ठीक है, राजाओं के राजा, बहुत बड़े महाराजा, ग्रेट किंग्स, ठीक है, महाराजा धीराज हो गया, त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट, ओके, त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट। तीनों लोकों के स्वामी, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, आसमान पाताल जमीन, ओके, सो लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीन दुनिया जो है, तीनों दुनिया पे जो राज करते हैं उनको कहा जाता है, और इसी तरह के बहुत सारे इतने बड़े बड़े टाइटल्स देते थे, त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। इसके बाद भी दे शेयर देयर पावर विद देयर सामंतास। कोई तो इनको भाई टाइटल दे दिया है, बट दे वांट पीपल हु कैन रियली वर्क विद देम हैंड इन हैंड, इनके साथ हाथ में हाथ मिला के जो लोग काम कर पाए। सो they often shared power with samantas। samantas तो हम पढ़ चुके हैं, these were the assistants to the king, and इसके अलावा इनके किंगडम में there were with association of peasants, बहुत सारे किसान होते थे इनके किंगडम्स में, peasants, traders and brahmanas। Got it? अब these peasants, traders, brahmins who were there, they were very active in all the activities that were going on in the kingdom। राज्य में जो भी काम होता था तो सामंतास यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड सामंतास यूज्ड टू एडमिनिस्टर ऑल द पावर। सारा पावर सामंतास के हाथ में होता था, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चलाने की कोशिश करते थे। दे यूज्ड टू कैरी ऑन ऑल द वर्क वेरी नाइसली। लोगों को राज चलाना है, राजपाट चलाना है तो टैक्सेस तो चाहिए। रिमेंबर वी हैव रेड इन सिविक्स that people have to pay taxes, so resources were obtained from the producers। पैसा कहां से आएगा? So resources were obtained from producers like मतलब कि जो कि उन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, like peasants, cattle keepers, artisans। Got it? अब क्या होता था ना, peasants are there, cattle keepers are there, artisans are there। कभी कभी इनको वो बहुत फोर्स करते थे कुछ चीजों के लिए। they were forced for certain things, they were persuaded or compelled to surrender part of their produce। whatever the peasants are growing, cattle are there, तो दूध पहुंचा दो, मक्खन पहुंचा दो, घी पहुंचा दो to the king and कम पैसे में सारी चीजें दो। तो what happened, sometimes these were claimed as rent। उन्होंने कहा क्यों दें? तो बोले यू आर लिविंग सो पीसफुली इन द किंगडम, तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ तो पैसे दोगे। यू हैव टू गिव एटलीस्ट सम मनी, एज यू आर लिविंग सो पीसफुली इन आवर किंगडम, सो सम मनी इज टू बी पेड। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। इनसे वो क्या करते थे, फ्रॉम देम दे हैड टू पे रेंट, एंड वो कहें कि नहीं हम सामान नहीं देंगे, तो कहे ठीक है पैसे दे दो।
रेंट मीन्स आप किंग के लैंड पे रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन द किंग्स लैंड और लिविंग इन द लॉर्ड्स लैंड, सो यू हैव टू पे सम मनी टू द लॉर्ड. ठीक है, उस समय इट वाज एट दैट टाइम देयर वाज नो टैक्सेस वाला नहीं था, तो वो रेंट करके लेते थे. एंड still money was needed, so revenue was collected from traders. Revenue was collected from traders. Got it? ये जितने भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं इनको रेवेन्यू देना पड़ता था. And you know, there were so many taxes, 100 types of taxes were there. Yes, dear students, I'll be showing it to you in the book itself, where they are talking that in the Chola dynasty, Cholas were biggest of the rulers. In the Chola dynasty, taxes were collected by the people. जो आम आदमी, जो लोग चोला किंगडम में रहते थे, they have to pay taxes. And पता है कितने taxes? They have to pay taxes as high as 400 taxes. 400 तरीके के taxes इनको पे करने पड़ते थे. Okay, so 400 taxes were to be paid. चोलास जो है, जो कि तमिलनाडु में रूल करते थे, they are claiming 400 types of taxes. तो अब whatever was collected, there were landlords were there, samantas were there, some people were like tax collectors, they were appointed. ये सारे पैसे का क्या होता था? What was done with? अभी जैसे today the taxes are collected, hospitals are open, schools हैं, colleges हैं, roads are made, water arrangements are done. ये सारी चीजें हम जो taxes देते हैं ना, उससे हमारे लिए ये arrangement होता है. उस समय means we are talking of the 7th century. At that time, all this money that was collected, it was used to finance king's resources. These money was used to finance king's resources. पहले तो राजा को अच्छे से एक लाइफ चाहिए, एंड लाइफ नहीं मतलब राजा हैं तो उनको अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैज टू गो फॉर वॉर्स. बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, आर्मी के लिए खाने का इंतजाम करना है. सो ऑल दिस मनी दैट वाज कलेक्टेड, इट वाज यूज्ड फॉर दैट. एंड और उस समय का जो एक मेजर थिंग दैट वाज देयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. बड़े बड़े किले बनाए जाते थे ना लोगों की सुरक्षा के लिए. हाउ विल द पीपल लिव? हमेशा कोई ना कोई आके आक्रमण कर रहा है. somebody is coming and attacking the kingdom. so how will the people have a peaceful life? पीसफुल लाइफ के लिए लोगों को इस तरह के कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते थे. एंड वॉर्स, मोस्टली देयर वर वॉर्स. सो जहां भी वॉर हुआ, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ वाज देयर इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर and access to the land as well as trade routes. There were wars for access of resources. Okay. Acquisition of wealth. And access to land and trade routes. अब इसका मतलब समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज देयर आर टू किंग्स आर फाइटिंग. When two kings are fighting, तो एक जीतेगा एक हारेगा. So the person who has lost, उसके सारा जो रिसोर्सेज है उसकी कंट्री का, इन हिज एरिया, इन हिज लैंड,
वॉट एवर इज देयर वो तो विनर किंग के पास चला जाएगा. Are you understanding? Because I'm the winner king. I'm fighting with another ruler who has lost. तो उसकी जितनी भी संपत्ति है वो मेरी हो जाएगी. And all the land that is there, that land will be mine. और उस रास्ते से कोई भी गुजरेगा, एनीबडी, ट्रेड रूट भी, तो उस समय तो लैंड के थ्रू ही एवरीबडी वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. रेलवेज नहीं था, एयरवेज नहीं था, वाटरवेज वॉज देयर, लेकिन एवरीबडी वॉज नॉट. वाटरवेज तो बहुत दूर था. तो all this came in the power of the king who has won the war. जिसने वॉर जीता है उसके पावर में ये सारी चीजें आ जाएंगी. ओके, एक्सेस टू resources, acquisition of wealth. Acquisition of wealth means capturing the wealth, getting the wealth, keeping the wealth, कब्जा करना. ओके, एंड लैंड एंड ट्रेड रूट. एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो अगर किसी और किंग का एरिया है तो आई हैव टू पे मनी, यार मेरे को प्लीज अपना लैंड क्रॉस करने दो. सो ही विल से, दे विल से, वो टोल टैक्स देना पड़ता है ना. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट यू हैव टू पे द टोल टैक्स. सो नाउ इफ दैट किंगडम ऑल्सो कम्स इन माइंड, तो हमको तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आई विल बी मूविंग फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. दैट इज देयर. गॉट इट? सो दिस वाज देयर. अब क्या है, टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा? Who will be collecting the taxes? So collecting revenue generally people were recruited means appointed, recruited from influential family. जो बहुत पैसे वाले होते थे ना, who were very close to the king, या फिर किंग के जो रिश्तेदार होते थे. किंग के भी तो रिश्तेदार होंगे ना, कोई उनके बहन की है, बहन है, बहनोई है, बेटी है, बेटा, दामाद है. एंड किंग्स रिलेटिव्स को ही ये पैसे कलेक्ट करने का काम है. लॉट ऑफ फेथ इज नीडेड. विश्वास पात्र आदमी नहीं होगा. इफ वी कैनॉट हैव फेथ ऑन दैट पर्सन, तो क्या मतलब बनता है? फिर कैसे करेंगे सारा काम? हाउ विल द वर्क बी डन? पता चला पैसे कलेक्ट करके अपने पास ही रख लिया द पर्सन. सो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, एंड इट वॉज हेरिडिटरी. ज्यादातर वो क्या करते थे ना, अपने फैमिली, अपने बेटे को, his son and or the grandson or the son's family जिनसे शादी हुई है, उनके साले हैं, उनके बड़े भाई के बेटे हैं. These people were only the people who were collecting the taxes. And army charges में, this was true for army also. आर्मी इज वेरी पावरफुल. तो आर्मी में ऐसे लोगों को ही शामिल करना है. सच पीपल वुड बी मेड इन चार्ज ऑफ द आर्मीज हु आर वेरी फेथफुल टू द किंग, हु आर वेरी फेथफुल टू द रूलर, जो उनको कभी भी धोखा नहीं देंगे, जो उनके साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे. Those people would be only recruited in the army. So close relatives of the king, ज्यादातर जगह पे हमको ये दिख रहा है that close relatives of the king were given all this power. ये सारा पावर जो है किंग के रिलेटिव्स को ही दिया जाता था. इन सब चीजों की जानकारी, हाउ डू वी गेट दीज इंफॉर्मेशन? फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी नीड टू नो अबाउट द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. Just because I am saying, don't believe it. Don't believe just because I am saying. We have done, the historians have done a lot of research work. काफी काम करने के बाद ये जानकारी आपके पास आ रही है. You are getting this information after doing a lot of work. So, prashastis and land grants. What are these prashastis?
Prashastis. Prashastis are, I told you, Prashasti is type of certificate that is given to somebody by the king. King has given Prashasti to somebody, and Prashasti khali aisa nahi tha that it was given to somebody as a certificate. Kings used to issue their own Prashastis. अपना बखान भी करने के लिए प्रशस्ति इशू करते थे. Yes, they wanted that the forthcoming generation should know about them. So, प्रशस्तिस contain details. बहुत हो सकता है सही ना हो. प्रशस्तिस contain detail that might not be very true. हो सकता है उतना सच ना हो. ठीक है. इट इज प्रशस्ति एंड द किंग हैज इशूड. अब मैं अपने बारे में अगर कोई आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन माई सेल्फ, विल आई राइट समथिंग बैड? नो. एवरीबडी विल रीड दैट आर्टिकल, सो आई विल टेल समथिंग गुड अबाउट मी ना. तो उस समय के किंग्स ने अपने लिए ये प्रशस्ति निकलवाई थी. लेकिन प्रशस्तिस टेल अस दैट द रूलर्स वांटेड टू शो देमसेल्व्स एज वैलियंट एंड विक्टोरियस. ठीक है. वो ये दिखाना चाहते थे कि हमने यहाँ पे वॉर किया. महाराजा धीराज तिलक सेन गुप्ता, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल, ने इस प्रदेश पे मध्य प्रदेश पे आक्रमण किया. आक्रमण करने के बाद जितना लैंड था वो उनके पास आ गया और सारे लोग उनकी सेवा में लग गए. एंड माने दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड प्रशस्तिस कौन लिखता था? Who were the people who were composing these prashastis, who were writing these prashastis? These were composed by learned Brahmins. These were composed by learned Brahmins. ठीक है. बहुत ही पढ़े लिखे ब्राह्मण्स थे, वही इसको कंपोज कर सकते थे. एंड दे वेर द वंस हु वेर हेल्पिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन. वो देखते थे उनके किंग कैसे हैं. सो इफ आई हैव आस्क्ड समबडी टू राइट समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने कहा कि भैया मेरे लिए एक प्रशस्ति लिखो, राइट डाउन अ प्रशस्ति डिस्क्राइबिंग माई क्वालिटीज, एंड दैट ब्राह्मण इज वर्किंग इन माई किंगडम, तो क्या वो मेरे लिए बुरा लिखेगा? Will that Brahman write something wrong about me? No. That Brahman will write great things about me. Okay? हाँ, so हमको कुछ प्रशस्तिस मिली है. We have got some प्रशस्तिस. Examples are there. Let's see those examples in the book itself. Got it? Students, just now we discussed about prashastis. Prashastis भी मैं आपको दिखाऊंगी. उसके पहले I wanted to show you this map. If you can see this map, what we have discussed about the kings who have formed the new kingdom, this was the Gurjara Pratihara. ठीक है. And this is a map. Children, please try to understand the importance जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, that it is a map which is giving us the information of the 12th century. Just see different parts of 7th to 12th century. 7th century में भी children please feel proud that इतने सारे kingdoms के होते हुए भी here we have the Banaras. Can you see the Banaras here? And the Prayag, that is Allahabad. Some of the ancient most cities of the world is located in India. ये आपने देखा. दिखाना चाह रही थी, that is the Rashtrakutas. Rashtrakutas, Danti Durga have established his capital here, and these were also the kingdoms that were newly formed. Got it, children? अब मैं आपको प्रशस्ति का एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. ओके, ये कुछ पुराने स्कल्पचर्स आर देयर. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. इट इज़ देयर इन Ellora. Now just see this prashasti.
Okay. Achievements of Nagbhatta is mentioned here. Many rulers have described, वो अपने बारे में बताते थे क्या क्या ग्रेट काम किया उन्होंने. They are very fond of telling this to the forthcoming generations. It is about Samudragupta. ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में. एंड नागभट्टा हैज रूल्ड ऑन विच ऑल प्लेसेस इट इज मेंशनड हियर. द किंग्स ऑफ आंध्रा, सैंधवा, विदर्भा, कलिंगा फेल बिफोर हिम. जब वो महाराजा नहीं थे उसी समय उनके सामने हथियार डाल दिया था. And he won a victory over Chakrayudha, ruler of Kannauj, and defeated the king of Vanga, that is Bengal, Anartha, Malwa. ये सारे देखो कितने ancient names हैं. But it is showing the greatness of Nagbhatta, how he has captured. अब ये प्रशस्ति में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ. This is there in the Prashasti. Just see the details that are mentioned here. Got it? We will be continuing the discussion in the next class, children. Till then, thank you so much and all the best to you.